What's up everyone, Profil here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Thursday, 16th of July and today was Sensex weekly expiry. Yesterday the Sensex straddle closed at somewhere around 500 and today the straddle opens at 360. Almost 140 point का एक overnight crush मिलता है and this straddle opening was pretty low in my opinion. But in spite of such low premiums, Sensex went completely silent in the first one and a half hours and it was kind of surprising to me as well, where there was practically no delta move. The market was quite mean reverting and the straddle saw a consistent linear decay of 100 points. मतलब 360 रुपीस पे जो straddle open हुआ था वो 260 रुपीस पे आके रुकता है somewhere around 11 o'clock. From here, there was a call spike which blasted the calls by 3 times. मतलब जो 110 रुपीस के आसपास जो calls ट्रेड कर रहे थे वो स्पाइक होता है to as high as 310 and डे हाई के आसपास एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ सिनेरियो आता है and उसके बाद markets again comes back into the day's range and it even tests the day's low and at one point it broke the day's low which spiked the puts by almost 5 times. जो 30-40 रुपीस के आसपास जो ट्रेड करते हैं पुट्स उसमें ज़्यादातर परसेंटेज टर्म्स के बेसिस पे ज़्यादा स्पाइक देखने को मिला. दैट 30-40 rupee ka put options went as high as 200 rupees. And after this, the markets again gave a linear kind of a decay. But post 2 o'clock, again the gamma blast started where the market started to hunt the liquidity on both the sides. Multiple times the calls and puts got blasted 2 to 3 times. And today after 3 o'clock, especially after 3:20, something peculiar was observed. Generally, expiry day पे 1 rupee का option जो 30-40 rupees पे spike होता है वो होता है जब market 3 to 315 के बीच मूव कर देता है. बट जब मार्केट्स 3 to 320 के बीच ऑलरेडी एक मूव किया हो एंड उसके बाद एक एवरेजिंग प्राइस जो वीवैप ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद इतना ज़्यादा स्पाइक हमको देखने को नहीं मिलता है. बट टुडेस मूव वाज क्वाइट पेक्यूलियर. आप कैंडल भी देखोगे, स्पॉट का भी कैंडल देखोगे तो द मार्केट्स मूव्ड वायलेंटली इन बोथ द डायरेक्शंस एंड दिस ऑप्शन ऑलमोस्ट वेंट फ्रॉम 90 पैसे to 35 odd rupees and finally in the last couple of minutes it again collapsed back to 11 rupees. It was quite surprising and that kind of took a bit of money from my PNL as well. But हमने डिस्कस किए थे कि आज का एक्सपायरी थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है and I hope you got positioned yourself for this kind of a scenario. So again निफ्टी के बारे में बात करना है तो द मार्केट्स आर गोइंग नोवेयर. 24,000 के अराउंड ही होवर कर रहा है एंड टुडे अगेन इंडिया विक्स गॉट क्रश्ड बाय अनदर 3% एंड ग्लोबल फ्रंट से द न्यूज़ इज नॉट प्रॉमिसिंग. यूएस इज कंसिस्टेंटली अटैकिंग ईरान एंड ईरान इज ऑल्सो रिटेलिएटिंग एंड इट इज थ्रेटनिंग दैट इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय all the infrastructure in that Middle Eastern region if US doesn't back out. So the news is not promising and markets are also waiting for some sort of a confirmation to pick a direction. मतलब at this point nobody knows whether the market's gonna head up or head down, but markets consistently wait कर रहा है कुछ clarity के लिए. But looks like we are in this war which is not gonna end anytime soon. ठीक है. So tomorrow is Friday. अगेन निफ्टी 2DT डेफिनेटली डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड्स हम प्लान नहीं करने वाला है बट वी कैन श्योरली प्लान मल्टीपल डायरेक्शनल ट्रेड्स. सो लेट्स गेट टू टर्मिनल एंड लेट्स प्लान. So today's Sensex expiry, honestly speaking, I was expecting some amount of delta move before 10 o'clock. But when this happened, where there was practically no move, almost एक ऐसे volatility contraction हमको देखने को मिला and in this time, almost 10:30, 10:45 के आसपास almost 100 points of linear crush straddle पे देखने को मिला. आई वॉज काइंड ऑफ फोमोइंग बिकॉज मेरे को लग रहा था कि क्या एक साइलेंट डे मैंने मिस किया क्या, एक 100 पॉइंट्स ऑफ डीके में पूरा मिस किया क्या. ऑफकोर्स मेरा ऐसा नहीं था कि पोजीशंस बिल्कुल जीरो थे बट मेरा पोजीशंस काफ़ी लाइट साइड पे थे, काफ़ी डिफेंसिव साइड पे थे. तो डेफिनेटली लाइक आई वॉज गेटिंग फोमोड इन बट देन ये मूव आता है एंड देन आई वाज लाइक ओके फाइन, आई वाज नॉट रॉन्ग एंड या नाउ आई कुड एक्चुअली स्टार्ट टू पोजिशन माई सेल्फ. तो यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ सिनेरियो आता है एंड हमने क्लियरली बताया था कि लाइक आज का जो कल का जो हाई है वो डेफिनेटली एक सॉर्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट्स कम से कम यहाँ पे आएगा एंड प्रॉब्ली 77,500 स्ट्रैडलर्स को, 77,500 कॉल रेटर्स को थोड़ा ज़्यादा पेन देगा. बट 77,500 स्ट्रैडलर्स को इतना ज़्यादा पेन मिला नहीं. ऑलमोस्ट 200 रुपीज़ के आसपास ये जो ऑप्शन था वो चला गया एंड उसके बाद वापस मार्केट्स नीचे आना चालू कर दिया. एंड या यहाँ पे वापस जब मार्केट्स इस रेंज के अंदर आया देन आई अगेन स्टार्टेड
to position myself in a neutral way, and I was expecting the markets to not breach this level, but यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक थोड़ा बहुत breach हो गया, and यहाँ पे even 77,000 का puts which were almost 3 strikes OTM, even they got spiked by a lot, and उसके बाद again in this phase there was a very good linear kind of a crush, but again यहाँ पे एक liquidity sweep करके एक liquidity absorption करके markets नीचे आ गया, and I was talking about this candle which not only spiked the puts by almost कितना 30 गुना, like 1 rupee का option went to 35 rupees, and finally it got crushed to 11 rupees. So all this happened in the last 5 minutes itself, so it was quite surprising to me as well, but nonetheless I closed somewhere around 0.4-0.5% overall on my book, and I think considering the moves, I think it was a decent outcome for me. ठीक है, तो let's not talk about today's expiry much, and let's talk about Nifty. अगर Nifty की डेली चार्ट की बात करते हैं, I mean बात करने को तो ज़्यादा है नहीं, 24,000 के इन एंड अराउंड ही होवर कर रहा है, एंड जैसे मैं कंटिन्यूसली कह रहा हूँ, मार्केट्स इस रेंज को ब्रेकआउट जब तक नहीं करेगा तब तक हमको कोई डायरेक्शनल मूव नहीं मिलने वाला है, बट नॉन डायरेक्शनल ट्रेड भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज 270-300 रुपीज़ के आसपास वीकली का जो स्ट्रैडल है वो मिलता है, बट मार्केट्स 200-300 पॉइंट्स ऑन अ डेली बेसिस दोनों तरफ मूव करता रहता है, तो इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल टू एक्चुअली होल्ड ऑन टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रैडल. बट अगर कोई लोग दूर दूर का ऑप्शन बेच रहे हैं, जो 20-30 रुपए का ऑप्शन जो वीकली पोजिशनल ट्रेड्स पे बेच के जाते हैं, थिंकिंग दैट इट्स फ्री मनी, yes, they might be kind of marrying right now, but that's not the way to be trading professionally in my opinion. Yes, जो लोग 24,500 का कॉल्स बेचते हैं, जो लोग 23,500 का पुट्स बेचते हैं, उनको कंसिस्टेंटली पैसा आ रहा है ऑलमोस्ट फ्रॉम द लास्ट 4-5 वीक्स, तो उनको लग रहा होगा कि ये तो मतलब जीरो लॉस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी है, बट ऑफकोर्स दे गोना लर्न द हार्ड वे, बट दैट्स नॉट माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स. अगर मुझे ट्रेड भी करना है पोजिशनल, प्रॉबली आईड साइज इट लोअर, प्रॉबली 2x नोशनल पे, एट मैक्स 3x नोशनल पे मैं ट्रेड करूंगा क्लोजर टू मनी ऑप्शंस एंड नॉट टेक हायर लेवरेज एंड फार आउटियम ऑप्शंस. ठीक है, सो एज आई सेड, पोजिशनल पे कुछ करने को है नहीं अंटिल अनलेस वी ब्रेक आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेंज. अगर लोअर टाइम फ्रेम पे बात करेंगे कल के लिए, तो straddle is trading at somewhere around 250. So as I keep saying every Thursday for Friday's plan of action, so you will not be in a position to guess where the straddle is gonna open tomorrow morning, and especially where the straddle is gonna close tomorrow morning, because कल straddle कहाँ पे खुलेगा ये थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि as long as there is no big gap down, straddle 250-240 के आसपास ही खुलने वाला है. इतना ज़्यादा ओवरनाइट क्रश हमको देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर बड़ा गैप अप दिखता है तो देन वी कैन सी दैट इवन 230-220 के आसपास भी स्ट्रैडल खुल सकता है. बट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, तो एक्सपेक्ट 240 एंड 250 के बीच स्ट्रैडल खुल सकता है. बट वेयर द स्ट्रैडल इज गोना क्लोज डिपेंड्स ऑन वेदर द मार्केट्स गोना होल्ड 24,000 लेवल्स और नॉट. क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी 24,100 के अंदर ही है. यू कैन सी हियर 24,050 के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज दिया है. तो अगर मार्केट्स ये जो लो है विच हैज़ बीन गार्डेड फॉर ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 सेशंस, 4 सेशन से जो लो गार्ड हो रहा है 24,000 लेवल, उसके नीचे अगर कल ट्रैवल करना शुरू करेगा तो देन एक्सपेक्ट इंडिया विक्स टू स्पाइक, एक्सपेक्ट इवन द वीकली ऑप्शंस टू स्टार्ट राइजिंग. तो जब मार्केट लेट्स से 12 o'clock 1 o'clock के आसपास 24,000 के नीचे अगर ट्राई कर रहा है, होवर कर रहा है, 24,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, देन द पीपल वुड नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट टू कैरी डेल्टा न्यूट्रल और शॉर्ट वॉल काइंड ऑफ ट्रेड स्ट्रक्चर्स गोइंग इनटू द वीकेंड. तो देन क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो वॉल्स है, वॉल्स थोड़ा बहुत स्पाइक हो जाता है. जो ये 250 का जो स्ट्रैडल ओपन होता है कल, तो प्रॉबली इट माइट इवन क्लोज एट 280-290 डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मार्केट्स आर समवेयर अराउंड 2 o'clock और 3 o'clock टुमारो. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना गेट इनटू द बिजनेस ऑफ प्रेडिक्टिंग व्हाट द स्ट्रैडल इज गोना डू टुमारो, एंड डेफिनेटली वी हैव no business whatsoever touching the premiums to short them delta neutral. मतलब delta neutral trade कल definitely नहीं करना चाहिए. तो directional trades of course हम लोग ले सकते हैं, but again directional trades भी ऐसे markets ऐसे range में है तो trend आना थोड़ा मुश्किल है, and definitely हमको थोड़ा mean reversion trades ही plan करना पड़ेगा at the extremes. मतलब हम लोगों को पास बहुत सारा हमको supports and resistances मिलने वाले हैं, करेक्ट. तो कल भी मैंने बताया था कि इस support के इस resistance के आसपास हमको short नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए मार्केट्स को एक्सटेंशन देने के लिए, एंड मार्केट्स यहाँ पे अच्छा खासा एक अपॉर्चुनिटी दी, ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न बना के मार्केट्स नीचे आया. एंड सिमिलरली कल भी मार्केट्स को हमको स्पेस देना है थोड़ा एक्सट्रीम मूव दिखाने के लिए, बिकॉज इफ मार्केट चॉप्स अराउंड 24,000 लेवल्स, आपको कोई ट्रेंड नहीं मिलने वाला है, डायरेक्शन आपको क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं होने वाला है. सो वन थिंग इज
वेट फॉर द मार्केट्स टू एक्चुअली कम टू 23,900. अगर कल मार्केट 24,000 के आसपास आता है तो आई एम नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग हियर. यहाँ पे लॉन्ग जाना मैं प्रिफर नहीं करूँगा गिवन द फैक्ट दैट इट्स अ फ्राइडे एंड मार्केट्स अगर 24,000 के आसपास होवर कर रहा है थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है बिकॉज वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक डाउन गोइंग इन टू द वीकेंड. बिकॉज मार्केट्स वीकेंड पे थोड़ा एंशियस जाना थोड़ा ज़्यादा पसंद करता है rather than going very overconfident. Because if you remember the month of March and April, you saw consistent 7 or 6 Mondays which we opened gap down. Almost consistently 6 Mondays gap down open हुए थे because the markets thought weekend पे इतना ज़्यादा risk नहीं है. तो probably people would not be very comfortable going overconfident, but rather they'd want to close their positions and probably take home short positions expecting अगर market में कुछ negative news आ जाता है weekend पे तो then they'd probably make a killing when the market opens on मंडे. तो दैट इज वाई अगर मार्केट कल 24,000 के आसपास होवर कर रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, राइट. मल्टीपल टच पॉइंट्स है, मल्टीपल टाइम्स यहाँ से मार्केट्स में बाउंस भी आया है एंड कल भी आ सकता है. बट एज अ ट्रेडर वी शुड नॉट बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड बिकॉज द रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट इन योर फेवर एंड एट द सेम टाइम द कंडीशंस क्या बोलते हैं ओवरऑल कंडीशंस आर नॉट इन योर फेवर टू गो लॉन्ग हियर. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेट द मार्केट ब्रेक डाउन, लेट द मार्केट डू वॉट एवर इट वॉन्ट्स अराउंड 24,000 लेवल्स. बट मैं वेट करूँगा समवेयर अराउंड 23,900. जब 23,900 के आसपास मार्केट्स आएगा तब मैं एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा, दैट टू अ बुल पुट स्प्रेड. मैं एक बुल पुट स्प्रेड में ट्रेड प्लान करने वाला हूं एंड इसको अगर मार्केट मेरे फेवर में आएगा तो आई विल होल्ड दिस पोजीशन टिल द एक्सपायरी. ठीक है, अगर इफ आई वर टू ट्रेड पोजिशनल्स. ठीक है, अब इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, ये जो लो है सैक्रोसैंक्ट लो है 23,800 के नीचे जब मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा. एंड व्हेन आई से मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा, नॉट जस्ट वन प्रोड ऑफ अ स्पाइक बट 30 मिनट्स मार्केट्स 23,700 के 23,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, देन इसमें जो भी लॉस आएगा उसको हम लेके क्लोज कर देंगे. एंड अगर मार्केट फिर से वापस रेंज के अंदर आएगा हम री एंट्री भी कर सकते हैं. एंड सिंस वी आर यूजिंग अ 1:1 बुल पुट स्प्रेड, यहाँ पे आपका लॉसेस एंड प्रॉफिट्स दोनों डिफाइंड रहेगा एंड मार्क टू मार्केट आपका इतना ज़्यादा हिलेगा नहीं एंड आप इसको कॉन्फिडेंटली ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं. एंड मेक श्योर दैट ये जो रिस्क है इट्स नॉट मोर देन 0.5% ऑफ योर कैपिटल. ठीक है, इससे ज़्यादा हमको रिस्क नहीं करना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट आई बिलीव. अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, बी माई गेस्ट, टेक दोस पोजिशंस, टेक दोस साइज, आई डोंट माइंड. ठीक है, नाउ वॉट हैपन्स इफ द मार्केट ओपन्स फ्लैट. यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो जनरली मैं बोलता हूँ कि लाइक रीसेंट जो स्विंग है अगर वो ब्रेक होता है 10 o'clock के पहले, आई आस्क यू टू गो शॉर्ट. बट टुमारो अगेन डोंट टेक दिस पर्टिकुलर ट्रेड बिकॉज मार्केट्स कहीं से भी सपोर्ट ढूंढ के वापस आ सकता है. करेक्ट, देर आर सपोर्ट पॉइंट्स, देर आर सपोर्ट पॉइंट्स विच आर काइंड ऑफ स्टैगर्ड. मतलब ऐसे स्टैगर्ड पोजिशंस पे जब सपोर्ट बनता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, बिकॉज दीज आर ऑल इंट्राडे में लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन पॉइंट्स. यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी अब्जॉर्प्शन करने के लिए मार्केट्स आया है एंड दोज विल एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट्स. करेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज डेज ओपन एंड फर्स्ट मार्केट यहाँ पे आया, लिक्विडिटी अब्जॉर्ब किया एंड देन सडनली शार्प अप मूव दिया एंड फिर से यहाँ पे लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने आया, यहाँ पे लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करने आया, देन द मार्केट्स शार्पली रेस्ड. तो सिमिलर तरीके का सिचुएशन कल भी आ सकता है. दैट्स वाई don't get chopped here. So that is why we'll wait for the markets to actually come to our levels. 23,900 के आसपास आने तक हम लोग लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करेंगे. जब 23,900 के आसपास आएगा एंड यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल देगा तो इवन वेट फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न. ये पैटर्न होने के बाद हम लोग एक्चुअली जो मैंने बोला था बुल पुट स्प्रेड उसको हम ट्रेड कर सकते हैं. नाउ व्हाट इफ वी ओपन विद अ बिग गैप अप. मान लो कि आज कुछ बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आ गया एंड सडनली मार्केट्स ऊपर आ गया, बहुत बड़ा वाला अच्छा वाला 120 to 150 पॉइंट्स का गैप अप आ गया. देन अगेन the same hypothesis, we'll wait for this particular liquidity sweep zone. यहाँ पे जो multiple times liquidity sweep के लिए market आया था 24,250 तक हम लोग short नहीं करने वाले हैं. Because yes, there is a गुड प्रोबेबिलिटी दैट आज का जो हाई है उधर से मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, कल का जो हाई है उधर से भी मार्केट नीचे आ सकता है. बट टुमारो बीइंग अ फ्राइडे एंड टुमारो बीइंग नॉट सच अ ग्रेट डे फॉर ट्रेंड्स टू emerge and also the way the price action is structured, the way the resistances and supports are structured, I would not want to short the markets here or here or here. मतलब रेजिस्टेंस होता है बट नॉट ऑल रेजिस्टेंस आर इक्वली वेटेड. तो मैं वेट करूंगा इस रेजिस्टेंस तक मार्केट आने के लिए 24,250 के आसपास. तो आई इनिशिएट अ शॉर्ट पोजीशन समवेयर अराउंड 24,250. आई इनिशिएट अ बेयर कॉल स्प्रेड. यहाँ पे मैं बेयर कॉल स्प्रेड 1:1 वाला बेसिकली एट द मनी कॉल को शॉर्ट करो एंड नेक्स्ट स्ट्राइक OTM को बाई करो. सो इट बिकम्स लाइक अ बेयर कॉल स्प्रेड एंड इस बेयर कॉल स्प्रेड को मैं कैरी भी कर सकता हूँ अगर मार्केट्स मेरे फेवर में रहे तो.
ठीक है, जब मार्केट्स यहाँ पे मान लो कि हम लोग शॉर्ट पोजिशंस इनिशिएट कर लिए एंड देन द मार्केट्स केम टू समवेयर अराउंड 24,100 लेवल, सो 24,050 लेवल तक एक अच्छा वाला फॉल मिल गया, तो देन इस लेवल के आसपास हम पुट स्प्रेड्स को भी ऐड करके इसको एक आयरन कॉन्डोर काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर बना के हम वीकेंड पे लेके जा सकते हैं. नाउ माइंड यू, दिस आयरन कॉन्डोर स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक अ नॉर्मल डेल्टा न्यूट्रल आयरन कॉन्डोर स्ट्रक्चर. पहले इसका इस पार्ट ऑफ द लेग बन रहा है, करेक्ट, मतलब हम लोग सिर्फ कॉल साइड एंट्री कर रहे हैं, मार्केट्स को नीचे आने दे रहे हैं. जब मार्केट्स नीचे आता है देन इसको प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड अगेन 24,000 के अराउंड ही मार्केट्स रहेगा. इस हाइपोथेसिस के साथ हम लोग इस ऑपोजिट साइड भी ऐड करेंगे व्हेन द मार्केट स्पाइक्स द पुट्स, व्हेन दिस फॉल हैपेंस, एंड देन विल कन्वर्ट इन दिस इनटू अ आयरन कॉन्डोर एंड टेक होम. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मार्केट इस रेंज के अंदर रहा तो डोंट डू एनीथिंग. यहाँ पे आप शॉर्ट करना, यहाँ पे लॉन्ग करना एंड थोड़ा बहुत स्पाइक में आपका स्टॉप लॉस खाना, वापस री एंट्री करना, वो मत करो, बिकॉज द मार्केट्स हैव बीन रिलेटिवली काइंड टिल द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई. ये महीना थोड़ा बहुत काइंड रहा है मार्केट्स, सो डोंट गिव बैक व्हाटएवर द प्रॉफिट्स दैट यू हैव मेड एंड या डोंट टेक अनड्यू रिस्क्स टुमारो. दिस इज व्हाट माय प्लान ऑफ एक्शन इज फॉर टुमारो. ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट्स आज का एक्सपायरी आपका कैसा रहा. फॉर मी इट वाज समवेयर अराउंड 0.4 0.5 के बीच मेरा ओवरऑल बुक पे पैसा बना है. एंड आई विल सी यू गाइस अगेन आफ्टर टुमारोज एक्सपायरी, probably on Sunday. Until then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.